Economic Zone project comprising 1,530 acres industrial zone at Dabiji Thatta under the China-Pakistan Economic Corridor. So now I would briefly like to talk about the unprecedented floods of 2022, how the valiant people of Sindh weathered these floods, the resilient people of Sindh, how they came out of these floods and came out stronger. Sir, we had hardly recovered from COVID-19 pandemic and the 2020 floods when in the year 2022 we were hit with a grave human tragedy in the shape of unprecedented floods. These calamities have tested the strength and unity of our people, but I am proud to say that Sindh has shown its true spirit in the face of adversity. The floods that struck Sindh caused massive devastation, impacting 70% of the province. 2 million houses were damaged or completely destroyed, leaving 12 million people homeless and vulnerable. Our schools, the bedrock of our children's future, suffered immensely, with more than 50% of them being partially or fully destroyed. Over 8,400 kilometers of roads were washed away, disrupting transportation and access to big communities. The agricultural sector, which sustains the livelihood of many in our province, faced significant losses, with thousands of tons of ready-to-reap crops destroyed. We knew that we couldn't solve all the problems overnight, but we committed to alleviate the suffering and started the journey of rehabilitation and recovery. Our initial efforts focused on rescue and rehabilitation of the affected people to alleviate the suffering and started the journey of rehabilitation and recovery. Our initial efforts focused on rescue and development portfolio and rechannelized recurring revenues for rehabilitation. Around 117 billion rupees were spent on these operations. Continuing the efforts, our government allocated more than rupees 900 billion on projects of reconstruction of roads, hospitals, schools, irrigation and other infrastructure through our annual development program. Here I would like to thank our chairman Bilawal Bhutto Zardari, who reached out to the international community and friendly countries as the Foreign Minister of Pakistan and helped us get donors funding. We would not have been able to respond effectively without his leadership and endeavors. Our approach to rehabilitation has been comprehensive and strategic, addressing key issues critical for holistic and sustainable recovery of our beloved province. I would like to highlight some of the significant initiatives that we have taken. In the works and services area, emergency flood assistance program amounting to rupees 46.3 billion with the assistance of Asian Development Bank has been approved, whereby 1,662 kilometers road network badly affected by the 2022 floods is rehabilitated. Sindh Flood Emergency Rehabilitation Project. The Sindh Flood Emergency Rehabilitation Project was approved for a duration of 3 years with World Bank as financing partner. In the fiscal year ending 23-24, following milestones have been achieved. In the infrastructure side, damaged roads, total 31 in number, are completed. 44 other roads will be completed in 19 districts by 30th of June 2024. 57 water supply drainage schemes will be completed in 5 districts by 30th of June 2024. Livelihood restoration, 90,778 beneficiaries have been facilitated through cash for work program in 14 districts. 48,000 more beneficiaries will be facilitated through cash for work program in 14 districts by 30th of June 2024. Through this program, short-term opportunities are provided to people for earning income by participating in disaster cleanup and restoration of community-level infrastructure. For institutional strengthening, 16 satellite stations have been completed. 4 district hospital facilities will be completed in 4 districts by June 30, 2024. Moreover, refurbishment of government hospital emergencies have been completed in 10 districts. The Sindh Flood Rehabilitation Project, the irrigation side, the government of Sindh took immediate repairs of 33 works, plugging, closing and strengthening 208 bridges, relief cuts and repaired pumping stations during the current financial year. This also included 32 critical works severely damaged through the works of floods of 2022 and that needed immediate rehabilitation. मैं जैसे भाई ने कहा थोड़ा सा इसको फर्दर इलैबोरेट करना चाहता हूँ. जो 2022 का फ्लड आया था स्पीकर साहब, हम सब उससे अफेक्ट हुए थे और लग रहा ये था कि ये इतना बड़ा सानिया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि शायद हमें सालों नहीं डेकेड्स लगेंगे
10 साल लगेंगे इससे निकलने में। लेकिन सलाम है सिंध के लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी एडवर्सिटी में, उसी साल मुझे अच्छी तरह याद है अक्टूबर या नवंबर 2022 था, अक्टूबर का एंड था, मैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ हेलीकॉप्टर पे जा रहा था और पानी देख के उन्होंने सिंध में कहा ये तो लगता है कि आप 1 साल इस पानी को नहीं निकाल सकेंगे और आप गंदम क्या कॉटन भी आपकी शायद ना हो सके। लेकिन सिंध के लोग थे, हुकूमत का रिजॉल्व था और सबसे ज़्यादा हमारी लीडरशिप आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कांस्टेंट एडवाइजरी थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो पानी निकला, हमारा 2022-23 वाला रिकॉर्ड गंदम की फसल थी और 23-24 वाली उससे भी बड़ी गंदम की फसल हुई है। आपने देखे होंगे इस वक्त नंबर्स आए, हमारी जो टारगेट्स थे जीडीपी ग्रोथ के वो कहीं पे भी मीट नहीं हुए सिवाय एग्रीकल्चर के, जिसने एक्सीड किए अपने टारगेट्स, और ये वजह थी। और उसमें एक बड़ी कंट्रीब्यूशन सूबा सिंध की थी और ये वजह थी, और ये सिंध के लोगों को सलाम है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सहारा दिया अपनी मुश्किलात के बावजूद। सर इसके साथ में ये एग्रीकल्चर में 80% of standing crops in the province of Sindh we took prompt action for revival of agriculture sector. In the first instance, minimum support price of wheat was increased from 2,200 to 4,000 to encourage farmers to grow wheat for Rabi season. A total of 147,446 farmers were provided with rupees 3.447 billion through Benazir Income Support Program for reimbursement of wheat seed. So इसके बाद मैं ये उर्दू में बता देता हूँ। मेरा ख्याल है जो सबसे कामयाब, सबसे अच्छा और सबसे यूजफुल प्रोजेक्ट जो शायद सिंध में नहीं पूरी दुनिया में हुआ है, मैं बताऊंगा क्यों। ये हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग ऑफ फ्लड अफेक्टीज, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सब दोस्तों को दे दूं। जब फ्लड आया 2022 का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने अपने सारे दौरे मनसूख किए और पूरा सिंध उन्होंने वो गए, और उन्होंने जहाँ जाते थे लोगों की सबसे बड़ी जो डिमांड होती थी गरीबों की, जिनके कच्चे घर थे, कि जी हमारा घर गिर गया, हमें घर बना के दे। एक दिन चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि जी हमने ये घर बना के देने हैं, आप ज़रा इस पर वर्किंग करें। मैंने रात को बैठ के वर्किंग की, कुछ लोगों से बात की, पता किया कि कितने घर, अंदाज़न उस वक्त तक तो अंदाज़ा भी नहीं था, एक एस्टिमेट लगाया, उस एस्टिमेट से भी ज़्यादा घर गिरे थे। जब वो देखा और पैसे देखे कि कितने लगेंगे, तो मैंने कहा मैं मुनासिब है कि बात ही ना करूं इसकी आगे, और चेयरमैन साहब शायद भूल जाएंगे। लेकिन अगले दिन जब मिले तो पहली चीज़ मेरे से ही पूछी कि आपने क्या किया। तब मुझे पता चला कि जी अब ये करना पड़ेगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अगेन चेयरमैन साहब का कि उन्होंने साथ दिया। हम ज़ीरो से शुरू हुए थे, हमारे पल्ले कोई 1 रुपया नहीं था फॉर दिस स्कीम। और मैं आपको बताऊं, इससे इतने ही बड़े फ्लड्स, खैर ये सबसे बड़ा था, लेकिन इसके टक्कर के फ्लड्स 1976, 1994, 2010, 2011, 2020 वाला भी फ्लड भी आए थे। कभी किसी हुकूमत ने घर बनाने की बात नहीं की, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैंने घर बना के देने। हमने शुरुआत की, तकरीबन 21 लाख घर हैं जो डैमेज्ड हैं। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल होगा। वर्ल्ड बैंक से बात की, चेयरमैन साहब से मदद ली। जनवरी 2023 में हमने इस पे एक्चुअल काम, इसलिए तब तक तो हम पानी को इवैक्यूएट करने में लगे थे, एक्चुअल काम शुरू किया जनवरी में ही। हम गए जिनीवा, उधर हमने अपना पहला केस तैयार किया, और चेयरमैन साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन सब ने हमारी उस ब्रीफ के बाद इस प्रोजेक्ट की डोनर्स को सपोर्ट की जो भी थे। एज अ रिजल्ट उस कमरे से निकलने से पहले $500 मिलियन की कमिटमेंट वर्ल्ड बैंक ने दी हमें शुरू में। तो हम ज़ीरो से शुरू हुए, $500 मिलियन हमने जमा किए, और उसके बाद आज तक $200 मिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने दिए,
$400 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए, और हमारे अपने 50 अरब रुपए हम और 50 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट से। वो खैर लंबी स्टोरी है कि उनके अभी पैसे नहीं आए, लेकिन उन्होंने अगले साल वादा किया है कि दे देंगे। हमने अपने 25 अरब खर्च किए, 25 अरब इस अगले साल में रखें, और हम इंशाअल्लाह ताला तकरीबन, अभी भी हम कुछ शॉर्ट हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये इतना इफेक्टिव प्रोग्राम है कि इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी, हमने प्लान इसको ऐसा किया था कि इतना ट्रांसपेरेंट रखें कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आके कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सके। किसी ने अगर एक घर भी किसी को मदद करनी है वो भी मदद कर सके। और इस वक्त तक हम तकरीबन 7,700 घर प्राइवेट सेक्टर से फाइनेंस करा चुके हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि इतना अच्छा डेटाबेस है हमारे पास कि एक डॉक्टर थे टंडो मोहम्मद खान के रहायशी, जो अमेरिका में कुछ 10-15 साल से है, उनका गांव भी डूब गया था, उनको पता चला तो उन्होंने कांटेक्ट किया सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज़ को और कहा कि जी मैं टंडो मोहम्मद खान के अपने गांव या उस यूनियन काउंसिल में 10 घर सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि ये ख़वातीन जो हैं आइदर विडोड और डिवोर्स, जो बच्चों का ख्याल कर रही हैं, उनको जाए। हमने उन्हें इमीडिएटली लिस्ट भेज दी, इसलिए कि हमारे पास वो डेटाबेस मौजूद है। इन 21 लाख में से 8 लाख ख़वातीन हैं जिनको हम घर बना के दे रहे हैं, और उन्होंने उनको सपोर्ट किया। इसका मैं थोड़ा सा क्वांटम बताना चाहता हूं दोस्तों को कि मैं क्यों कह रहा हूं ये दुनिया का सबसे, आज तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं हुआ है। इससे पहले नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, हुकूमत ने 8 लाख घर बनाए थे उसके लिए, उनको 5 साल लगे थे। हमें अभी 1.25 साल या चले 1.5 साल हुआ है बनाते हुए। हम 1,25,000 कंप्लीट कर चुके हैं। 5.5 से 6 लाख के दरमियान घर हमारे इस वक्त कंस्ट्रक्शन में, और हमारे पास फंडिंग तकरीबन 15-16 लाख की मौजूद है इस वक्त। बाकी आखिरी 4-5 लाख की हम अरेंज कर रहे हैं, और ये काम रोज़ाना हम 1500 घर कंप्लीट करते हैं, जो हम बढ़ा के 3000 पे ले जाना चाहते हैं। इसका क्वांटम क्या है? ये घर की जो टोटल हमने आबादी निकाली, इसलिए कि हमारे पास जैसे मैंने बताया डेटाबेस है, तकरीबन 1,60,00,000 लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इससे। इनको हम फ्री लैंड टाइटल, मैं बताना भूल गया, चेयरमैन साहब की हिदायत के मुताबिक इन सबको मालिकाना हुकूक भी उस ज़मीन के दे रहे हैं। जहाँ पे भी गवर्नमेंट की ज़मीन पे बैठे उनको मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं, ख़वातीन को, वो उस घर की जो खातून है उसको। और ये 1,60,00,000 घर लोगों को घर बना के देने का मतलब है कि दुनिया के 154 ममालिक से बड़ी आबादी, यानी अगर ये सारे हम एक मुल्क बना दें तो 154 मुल्क की आबादी इन लोगों से कम है जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त और घर बना के दे रहे हैं। सो दिस इज़ बाय फार द बेस्ट सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन द इंटायर वर्ल्ड। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, और इंशाल्लाह ताला इसी मॉडल को हम लेके आगे जाएंगे। और ये घर कैसे बन रहे हैं? ये कोई महल बना के नहीं दे रहे, एक कमरा है, लेकिन वो एक कमरा है क्लाइमेट रेजिलिएंट। जो फ्लड लेवल थे उससे भी 2 फीट ऊपर हम उसकी प्लिंथ बनवाते हैं उनसे। वो खुद घर बनाते हैं, कोई ठेकेदार नहीं है इसमें, किसी को ठेका नहीं दिया जा रहा। इन सब के तकरीबन 8.5 लाख के बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। ये सब लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी आ गए हैं। जिन लोगों ने कभी बैंक देखा नहीं था, उनको बैंक अकाउंट का पता नहीं था, उनके बैंक अकाउंट्स खुले हैं। ये सारी चीज़ें दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुई, और ये सिंध हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे और उनकी कंप्लीट गाइडेंस में ये पूरा किया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह ताला हम इसको और बेहतर करेंगे। और उन इलाकों में जहाँ कच्चे घर लोगों के हैं, शहरों में जो कच्ची आबादियाँ हैं, उसके लिए भी हमने एक स्कीम बनाई है कि उनको भी हम पक्का करके दें ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और इंशाल्लाह ताला ये जो अगले 5 साल हैं इसमें हम ये अचीव करने में कामयाब होंगे। सर, मैं वेरी ब्रीफली आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो कि मेजर, जैसे ही हमारी हुकूमत आई थी, द फर्स्ट थिंग दैट केम वाज रमज़ान। सो द गवर्नमेंट, our government, I entered office on 26th of February 2024, and the holy month of Ramzan was approaching within 2 weeks.
In order to provide relief to the people of Sindh, the Ramzan relief package worth rupees 22.1 billion was provided as targeted monetary assistance to 4.42 million families through the Benazir Income Support Program. Again, a very transparent system. The Benazir Income Support Program, again, is the single most recognized program in the world for social protection. कई सारे मुल्क हमें कॉपी कर रहे हैं और ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की ब्रेन चाइल्ड थी जब वो सदर पाकिस्तान थे कि उन्होंने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बहुत बड़ा मसला था उनकी पेंशन्स का। उस सिलसिले में हमने एडिशनल फंड्स तकरीबन 22 अरब रुपए उनको दिए। टोटल ओवरऑल इंक्रीज 55 अरब रुपए हुई है करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और इस तरीके से हम 11,657 रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के पेंशनरी ड्यूज़ जो हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला अगले साल के पहले महीने में ऑल पेंशनरी लाइबिलिटीज़ विल बी क्लियर्ड एंड देयर शैल बी नो पेंडिंग पेंशन क्लेम्स जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉयज़ होंगे उनके। सर, हमारा आइन कहता है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट 2 से 3 महीने के लिए आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे सूरत हाल हुई, सेंसस हुआ, सेंसस के और ये भी आइनी रिक्वायरमेंट थी कि जी सेंसस के बाद डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, इस वजह से डिले हुए। तो बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग टेन्योर ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट फ्रॉम August 23 to the end February 2024, the entire development activity in the province was halted because of ban imposed by ECP on approval of new schemes and execution of ongoing schemes where tenders were not initiated. However, when we assumed the government, we focused on resuscitating the development regime and set the ball rolling again. We made significant strides in infrastructural and social sector development, and the pace of development activity resulted in highest ever development spending in province for the current financial year. Sir, हमने क्या किया था जब जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ख़त्म होने में 1.5 महीने से कम रह गया था और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने इंस्ट्रक्ट किया। उस वक्त 1500 से ऊपर नई स्कीम्स थी और उन्होंने 1.5 महीने में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, 764 स्कीम्स अप्रूव की और वी वर रेडी टू वर्क। हमने जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी उसकी एडिक्वेट फाइनेंसिंग रखी। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जी नई स्कीम्स की अप्रूवल भी बंद कर दो, जो टेंडर नहीं हुई अप्रूव्ड स्कीम्स इस असेंबली ने अप्रूव की हैं। इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुंचता था कि असेंबली की अप्रूव्ड स्कीम्स को वो बंद करे कि ना आगे चलाओ, लेकिन जी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। हम कुछ कहते थे तो कहते थे कि जी आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। इसके बावजूद इस साल, और मैं आगे बात करूंगा व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स, हमारा हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट स्पेंडिंग हुई है in financial year 2023-24. In our previous administration, the collective focus remained on combating natural disasters. Now Sindh is poised for growth. So we aim to enhance provincial revenues through resource mobilization by way of introducing few minimal taxes, rationalizing the existing ones, and equalizing the tax rate with sister provinces and federal authorities. The economic revival requires limiting ourselves to essential expenditures, completing capital projects, and making Sindh an investment destination. Sir, now I would like to unveil the fiscal plan of the 4th consecutive tenure of the Pakistan People's Party government in Sindh, starting from the revised estimates of current financial year. Mr. Speaker, sir, the revised estimates for provincial expenditure have been proposed at rupees 2,252 billion for the year 2023-24 as against the budget estimates of rupees 2,282 billion. It includes revenue, capital and development expenditure. Now I would like to present the main features of provincial expenditure. For current revenue expenditure, revised estimates for the year 2023-24 have been pitched at 1,584.2 billion, representing 25% increase against current year's budget estimates of 1,411 billion. The increase is mainly due to employee-related expenditure. For current capital expenditure, revised estimates for the year 2023-24 has been proposed at rupees 139 billion, showing an increase over current financial year's budget of rupees 136 billion. This increase is due to surging
rupee dollar parity within the range of rupees 275 to rupees 307 per US dollar, raising the expenditure towards repayment of loans. The estimates for investment activities have been revised to rupees 93.6 billion as compared to the budget estimates of rupees 88.2 billion for the current financial year 2023-24. So the development expenditure. So here I would like to state, और मैं पहले बता चुका हूँ, that our previous government presented the budget last year keeping in view end of its constitutional tenure in August 2023. We planned the development process so well that the pace of development activity continued even during the caretaker setup. It should have continued even more, even at a higher rate, but unfortunately I told you what the ECP did. It is because of this planning that the current fiscal year has witnessed the highest development expenditure ever. We estimate that the development expenditure will cross rupees 480 billion in the current financial year as against rupees 313 billion in last financial year. It is important to draw the House attention to the fact that federal government in 2023, ये भी मैं आपको बता देता हूँ सर, पिछले साल federal government ने 52.9 billion federal PSDP में रखे for Sindh projects, और ये बड़ी मुश्किल से रखे गए थे इसलिए कि उससे पहले 4 साल सूबा सिंध को कोई एक स्कीम नहीं दी थी, वो जो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने। और फिर जब हम कोalition का पार्ट बने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी फेडरल के गवर्नमेंट के लोग, उनके प्रेशर की वजह से और उनकी जस्टिफिकेशन की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 53 अरब रुपए डाले थे 2023-24 में फेडरल PSDP में फॉर सिंध प्रोजेक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ इन 53 अरब से। सो मच सो कि 29 जनवरी 2024 को, यानी इलेक्शन से 8-9 दिन पहले, केयर टेकर गवर्नमेंट एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाती है और कहती है कि जिन प्रोजेक्ट्स में जीरो एक्सपेंडिचर है उन सबको निकाल दो। अच्छा, सिंध को मैंने आपको बताया पिछले 4 साल में एक स्कीम नहीं दी, तो हमारे तो सारे नए प्रोजेक्ट्स थे। 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स सिंध के निकाल दिए इन लोगों ने। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हमने दोबारा केस पेश किया NEC में, हमने रिवर्स कराई वो डिसीजन केयरटेकर गवर्नमेंट की, और वो 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स दोबारा इंक्लूड हुए। और ये जो साल अभी आ रहा है उसमें पिछले साल उन्होंने 23 अरब रुपए रखे थे फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, जो जिसमें 88 अरब थे, और 25 अरब रुपए रखे थे हाउसिंग के लिए, 5 अरब एजुकेशन के लिए। अगले साल इन पहले प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब रुपए रखे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। अब ये हमने उनसे ये पैसे लेने भी हैं, और मैं ज़रूर अपने अगस्त हाउस को, अपने कॉलीग्स को उसकी अपडेट देता रहूँगा कि कितने पैसा है, ताकि हम आपकी भी मदद और आपकी आवाज़ भी हमारे साथ हो फेडरल गवर्नमेंट से अपना हक लेने के लिए। मैंने ये सारी So moving to the figures, the revised estimates for 23-24 for provincial development expenditure stand at rupees 549.5 billion. It includes 283 billion for provincial ADP, 24 billion for district ADP, and 240 billion for foreign project assistance. So कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं जो हमारी पिछले साल हुई। हमने सिंध इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम 6.12 अरब रुपए का कंप्लीट किया है। खिपरो से उमरकोट रोड 4.1 अरब रुपए का हमने कंप्लीट किया है। Reconditioning of Mehran Highway from Landi, Karachi to Port Qasim, 1.76 billion. Construction of new 100 MGD pump house at Dhabiji costing 1.62 billion. आप अगर rehabilitation, reconstruction of Shara Noorjahan from Abdullah College to Kalanaria Chowk, costing 3.36 billion. Benazir Institute of Urology and Transplant, District Shaheed Benazirabad में 1.5 अरब रुपए की हमने कंप्लीट की है। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी डिटेल्स बजट बुक्स में भी हैं, और आपको एक और किताब मिली होगी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से, उसमें भी ये सारी डिटेल्स हैं। मैं वक्त नहीं लूँगा आपका डिटेल्स को बताने के लिए। प्रोविंशियल रिसीट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स एंड ये प्रोविंशियल रिसीट्स पे आता हूँ मैं। सिंध इज लार्जली रिलायंट ऑन फेडरल ट्रांसफर्स बीइंग प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अ रिसोर्स एनवेलप। इट कंप्राइजेस शेयर फ्रॉम डिविजिबल पूल एंड स्ट्रेट ट्रांसफर्स। Revised estimates of federal transfers are proposed to be rupees 1.395 trillion as opposed to rupees 1.353 trillion.
for the financial year 2000, as budget estimates of 1.353 trillion for financial year 2023-24. Revised estimates for divisible stand at 1.264 trillion rupees as against budget estimates of 1.255 trillion, and customs and federal excise duties of rupees 179.6 billion and rupees 81.98 billion respectively. Revised estimates for trade transfers stand at rupees 97.44 billion against budget estimates of 64.42 billion for the year 2023-24. We expect to receive the budgeted amount by the end of current financial year 2023-24. ये सारे पैसे हमें मिले नहीं हैं, अभी 2 किस्तें आनी बाकी हैं, एक 17 को शायद ना आए, ईद का दिन है उसके बाद आए, या हो सकता है आज आखिरी दिनों को हो सकता है आज आ जाए हमारी सेकंड लास्ट किस्त, और एक 30 जून को जो किस्त आनी है तब वी आर होपिंग दैट द फेडरल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस विद दिस मनी. सर, हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में मैं बता दूं, हम सबसे ज़्यादा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस हमारा अगेन एक सक्सेस स्टोरी है. सिंध सेल्स जो हमारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, हमने 2012-13 में बनाया था. 18th अमेंडमेंट से पहले ही वैसे तो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशियल सब्जेक्ट था हमेशा से, लेकिन फेडरल उसको कलेक्ट करती थी. 2002 की वक्त में इस प्रोविंशियल असेंबली ने उस वक्त में उनको इजाज़त दे दी थी, और जब आखिरी उन्होंने हमारे लिए कलेक्ट किया तो उन्हें तकरीबन 14.5 अरब रुपए कलेक्ट किए थे फेडरल गवर्नमेंट ने जो सिंध हुकूमत को दिए थे. हमने वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस प्रोविंशलाइज किया. NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड में उसको लिखवाया स्पेसिफिकली, और हम पहला प्रोविंस थे जिसने वो कलेक्ट करना शुरू किया. पहले ही साल में हम 14.5 से 25 अरब पे गए, और ये जो साल गुजरा है उस पर हमारा टारगेट 235 अरब रुपए है फॉर सेल्स टैक्स एंड सर्विस, और इंशाल्लाह ताला हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं. नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 78 बिलियन का है. उसके साथ साथ हमारी जो प्रोविंशियल रेवेन्यूज़ हैं वो इस साल के 475 बिलियन टोटल होने हैं. इसके अलावा जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस हमें इस साल मिली है, एंड दिस ऑल गोज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वो तकरीबन 240.07 बिलियन है, और इसकी और 4.9 बिलियन ऑफ बजटरी सपोर्ट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिल जाएगी.